हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कई लोग आप में से स्क्रीन आउट हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या। और दुख ये भी होता है जब आप कई बार तो ऐसा होता है कि आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे और अगले उसमें जाके स्क्रीन आउट हो गए। कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद आपने बहुत तैयारी की, आपने बहुत सोचा, बहुत मंथन किया और इस बार सोचा कि इस बार मैं जाके उसको इम्प्लीमेंट करूँगा और चीज़ें जो गलत हुई हैं उसको ठीक करूँगा। परंतु जब आप वहाँ पहुँचे तो अगेंस्ट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस यू गॉट स्क्रीन्ड आउट। बहुत सबसे मुझे लगता है कि बहुत सबसे मुझे लगता है कि दुख देने वाला हिस्सा जो है वो स्क्रीन आउट ही होता है। परंतु एक चीज़ आप समझिए कि स्क्रीन आउट जो है ये कहीं से भी आपके व्यक्तित्व का चित्रण नहीं है। इट इज़ इन नो वे स्टेटमेंट ऑन योर पर्सनैलिटी। तो आप इसको पहली बात तो ये चीज़ ज़रूर समझिएगा कि अगर आप स्क्रीन आउट हुए हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू डोंट हैव इट इन यू। You have it in you, that is for sure. And that is the reason why you're going there. That belief system is always there. There are certain people who go 10 times, 11 times. It only shows their, strength. I will rather take it as stamina and strength, determination. If the person is not giving up, why should you give up? Why should you give up? Why should anyone give up? So you're trying your best, you're changing things within you, you're trying to learn new things, you're trying to unlearn things. एसएसबी में एक्चुअली आप समझेंगे तो चीज़ें अनलर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत हो गई अब। वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब जगह से कोलेट हो गया है कि यू रियली डोंट नो व्हाट टू ट्रस्ट, व्हाट टू डू। खैर एनीवेज, मेरा टॉपिक आज का कुछ और है कि क्या आप स्क्रीन आउट हो रहे हैं बार बार। पहली बात तो जो मैंने आपको बताया कि आपके चरित्र पर, कोई भी चरित्र मतलब आपकी पर्सनैलिटी पर, ये कोई स्टेटमेंट नहीं। So it doesn't in itself says, or it can say in itself that you are not worthy of being recommended. It is just a elimination process. तो यही मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रोसेस है। मकसद है कि एलिमिनेशन प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ elimination. Why elimination? Because as you might have come to know that as you are already aware, there are a lot of people who are reaching out. A lot of people who are applying for a lot of vacancies are also growing up, so people are also applying, and it is one of the best services to be part of. It is, I think, the best. So a lot of people are applying. So what is happening? A lot of people are being selected or shortlisted for SSP. Now, how to reduce that shortlisting? We can't reduce that. You can set a certain criteria. Like if you set the certain criteria as in 12th it should be 60%, in graduation it should be 60%. मान लीजिए आप शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल में शॉर्टलिस्टिंग मेरी 80% तक जा रही है, 70 तक जाती है। अब ये नहीं कह सकते कि मैकेनिकल में अब मैं जो है वो IIMs की तरह जो 99.9 परसेंटाइल पे जाऊंगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट द एम ऑफ द SSP. इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस ओनली और एकेडमिक प्रोसेस ओनली। ये तो व्यक्तित्व का टेस्ट है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. सो नाउ मेनी पीपल आर कमिंग, सो वी कांट एकोमोडेट एवरीवन. सबको हम 5 दिन के लिए नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एलिमिनेट करना ज़रूरी है. तो it is a process of elimination, and it is primarily because it is an administrative hassle. So that's why this process or this system of PPDT was brought in, picture perception and discussion test. यकीन जानिए तो आई थिंक पूरे SSB का एक यही ऐसा प्रोसेस है जिसपे मुझे लगता है कि DIPR को भी लगता होगा, ये लगता है कि I think it is not foolproof, because you see a person who is recommended for one board goes to the next board, he gets screened out. I had a girl student who qualified for NDA, got screened out in TES, got merit in NDA, now she is in NDA. So nothing is sacrosanct, permanent, and nothing is, it means to say that this system there is a flaw. Generally आप देखेंगे someone who is recommended by one board and in case he is screened in, he is recommended by another board also. So it means the SSB process is sacrosanct, quite a bit. But this is not. A person who is recommended, conferenced out last time, is screened out. तो आप पहले तो इसको अपने व्यक्तित्व से मत जोड़िए. It has nothing to do with your
personality per se. Having understood that, now please understand it is a process of elimination. Basically, I'm trying to eliminate. So how do I eliminate? There are 4 stages which you should work upon if you do not wish to be eliminated. First stage is your officer intelligence rating. What is officer intelligence rating? It is basically your IQ test. You can do really well in this. If you really work hard, it is within your reach. Please work hard. Nothing should stop you. मेरा एक स्टूडेंट है जो अब IMA में है, from a very humble background of Maharashtra, and that boy, he was working so hard. He was a true blue-blooded, spirited soldier, eager to join armed forces, and he used to be a farmer. He used to do farming and preparing for armed forces. A lot of and he got recommended. because बात थी उसमें, ही तो है. तो उसको सेट्स याद थे. सेट नंबर 100 में OIR के इस वाले सेट में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है. उसने इतनी मेहनत की थी. आप चाहें तो उतनी मेहनत कर सकते हैं. आप OIR को परफेक्ट कर दीजिए. मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ OIR को परफेक्ट करने को, बिकॉज अगर आपका OIR 1 है, मैं आपको सीधा सा एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ. बाकी डिटेल में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा. क्लासेस में आई एक्सप्लेन दिस इन डिटेल ऑल्सो. बट एक चीज़ समझिए कि अगर आपका OIR 1 है, मतलब आप 95% प्लस है, 90% प्लस है, अगर एक एसेसर ने आपको डी भी दे दिया, डी का मतलब डाउटफुल, ही इज नॉट सेइंग यस इसको ले लो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं बोल रहा है कि नहीं लेना ही है इसको. यस तो कोई बोलता ही नहीं है. आई हैव नेवर सीन दिस रेटिंग. यस होता ही नहीं है. यस you can say कि yes doesn't exist, either it is no or it is doubtful. So even one assessor, let's say आयो को आप पसंद आ गए, आपकी बात करने का अंदाज पसंद आया, आपका नरेशन पसंद आया, तो you're in. या साइक को पसंद आ गया, आपका स्टोरी अच्छे से लिखी आपने अच्छे से उसको फील किया, महसूस किया, या GTO को अच्छा लगा आपका बात करने का तरीका, डिस्कशन आपने अच्छे से की. One assessor also, if he has doubt also that you can be taken, you should be taken, you will be taken. So आप ये बात समझिए कि अगर मैंने 15 बच्चे बिठाए हैं तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं 3-4 तो लूँगा ही बाय एंड लार्ज. तो आपको 3-4 में होना है, आपको 11 में नहीं होना है. तो इलिमिनेट वाले उस सेक्शन से निकल के आपको, ये आर्ट है. पहला आर्ट का मैंने आपको तजुर्बा बता दिया कि आप OIR ऊपर रखिए, चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे. कई बार आपको लगता है मैंने यार इतना अच्छा बोला, मैंने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी, मैंने इतना अच्छा डिस्कशन किया, मैंने ही कंक्लूड किया, मैंने ही सब फॉर्मुलेट किया, फलाना किया, ढिमकाना किया. भैया आपका OIR कम था. OIR अगर आपका 4 या 5 है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप अगर स्क्रीन इन हो गए तो हो गए. मतलब आप सैम मानेकशॉ हैं या केम करियप्पा हैं या कुछ बहुत बड़े मतलब सुपर डुपर हैं, ऐसे तो आप है नहीं. हम सब एवरेज हैं. तो एवरेज लोगों के लिए OIR बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप ध्यान दीजिए. उसके बाद सेकेंड थिंग जो आती है वो ये है कि आपका नरेशन कैसा है. अब आप नरेशन में भी ग्रुप को ब्लेम नहीं डाल सकते हैं. नरेशन इज योर ओन बेबी. हाउ वेल यू नरेट द स्टोरी. इफ यू नरेट इट वेल, you are in. And if you hesitate in narration, and if you you're not able to at that moment, वो कहते हैं ना, शाहरुख खान की कोई मूवी थी वो चक दे इंडिया, तो उसमें बड़ा अच्छा उसने भाषण दिया था. वो 70 मिनट, ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं ले सकता, ये 70 मिनट आपके जीवन को डिफाइन करेंगे. तो वैसे ये 1 मिनट आपसे कोई नहीं ले सकता. ये 1 मिनट का नरेशन आपको फेंस के उस तरफ पहुंचा देगा. कॉन्फिडेंट, बिलीविंग. कई लोग क्या करते हैं ना, अपनी स्टोरी पे खुद ही विश्वास उनका उठ जाता है. स्टोरी लिख दी, विश्वास उठ गया. जब आपको अपनी स्टोरी पे विश्वास नहीं है, आप कैसे अच्छा बोल सकते हैं? आप नहीं बोल सकते. तो नहीं बोल पाएंगे तो वो हेजिटेशन, वो वो तंगी आपकी, वो घबराहट, वो सुगबुगाहट मन में, वो सब दिखेगा ना. सो नरेशन शुड बी पिक्चर परफेक्ट.
अगेन वो आपके हाथ में है। प्रैक्टिस कीजिए, धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए, जोरदार प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कोई कोताही मत बरती। नरेश एंड अपने पे विश्वास रखिए। अब आप क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप मान लीजिए बीच में कहीं तीसरे चौथे पांचवें नंबर में बैठे हैं, इधर पहली स्टोरी सुनी तो आप हिल गए, ये तो बड़ा अच्छा स्टोरी बोल रहा है, दूसरी बोली उससे भी हिल गए, तीसरी बोली उससे भी हिल गए, चौथी बोली उससे भी, पांचवें आते आते आप अपनी स्टोरी भूल गए। अरे अपने पे विश्वास कीजिए भाई, आपने भी तो अच्छा स्टोरी लिखा है। आपको यकीन ही नहीं होता है कि हाँ मैंने भी अच्छा लिखा है, और चूंकि आपके यकीन में नहीं आता है कि मैंने अच्छा लिखा है, तो यकीन में नहीं आने वाली जो बात है, जो छोटी सी वो बात है, इसी पे मुझे याद आ गई मूवी छोटी सी बात, ज़रूर देखिएगा। वो भी पर्सनैलिटी बेस्ड मूवी है। मेरे को लगता है हिंदुस्तान में पर्सनैलिटी बेस्ड मूवीज़ अगर कोई हैं तो सिर्फ ये एक ही है, छोटी सी बात, अमोल पालेकर साहब की। तो वो जो छोटी सी बात है नरेशन वाली, अपने पे विश्वास वाली, वो मत भूलिए, विश्वास रखिए, सुनिए स्टोरीज सुनिए, परंतु अपना साथ मत छोड़िए, अपनी स्टोरी का साथ मत छोड़िए। बेबाक तरीके से, संपूर्ण विश्वास के साथ, अच्छी आवाज़ में और अच्छे संवाद में व्यक्त कीजिए अपनी अभिव्यक्ति को। ज़्यादा हिंदी हो गया। एक्सप्रेस योर सेल्फ, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एनर्जी, चील। Do not show your, inhibitions, that is your moment, buddy. And you just can't, let it go. ये वो 1 मिनट है जो वो 70 मिनट थे हॉकी वाले शाहरुख खान की मूवी। ये 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे यकीन से मान लीजिए मेरे शब्दों को कि अगर आप 1 मिनट सही बोल गए, OIR अच्छा कर आए हैं, 1 मिनट अच्छा बोल दिया आपने, स्टोरी ठीक ठाक लिखी है, आपका 90% सिलेक्शन हो चुका है, 80% सिलेक्शन हो चुका है। बाकी का 10% ग्रुप डिस्कशन पे है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी का 10% भगवान के हाथ में। भगवान की भी खूब आप पूजा वूजा कीजिए, उनको बना के रखिए, पटा के रखिए, तो ज़रूर आपका वो ख्याल रखेंगे। नरेशन अब आखिरी हिस्सा है, वो है डिस्कशन। आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप यकीन जानिए, अब मैं वापस चलता हूँ, आपका OIR बहुत अच्छा है, आपने स्टोरी बहुत अच्छी लिखी और नरेट बहुत अच्छे से किया, परंतु आप अगर किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजहों से चुप हैं, मतलब यू आर नॉट speaking, you are stuck, you are bedazzled by the commotion that has happened, and you are making faces, oh no, what is this, where am I stuck, why I'm here, you're out. अगर आपने ग्रुप में चुप रह गए ना, आपको कोई नहीं करेगा। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि इफ़ यू कीप क्वाइट इन द ग्रुप यू विल नॉट बी सिलेक्टेड अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल आपने नरेशन कर रखा है, या बहुत ही एक्सेप्शनल स्टोरी बना रखी है, पता नहीं क्या हो गया है कुछ, एट फॉर नो सर्टेन रीजन्स। सो नरेट इट वेल, बिलीव इन योर स्टोरी एंड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। पार्टिसिपेट कैसे करना है डिस्कशन पे, इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और वो बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा। क्लासेस में भी मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ, जब वो पार्टिसिपेशन करते हैं तब मैं उनको और समझाता हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं तो उस पर आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, परंतु एक जेनरिक वीडियो ज़रूर बन सकता है। तो वो पार्टिसिपेशन पे मैं बताऊँगा कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, कितने पॉजेज लेने हैं, कितने नहीं लेने हैं, और कैसे अपने आप को व्यक्त करना है, उसमें बात करेंगे। सो डू नॉट गेट एलिमिनेटेड, एलिमिनेट द अदर्स। यही है आर्ट, इसको आपको सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।